Hello everyone, this is Preet Kamal and I'm today here to discuss with you about the computer network subject and the switching techniques will be our topic. But before that, as usual, there will be an important information related to Mission Fateh. Wash your hands properly and use sanitizer, maintain social distancing, use mask whenever you go out and make the Mission Fateh successful in Punjab especially um, and always obviously in India also. So let's move on to the topic. As you can all see on my screen, the today's topic is the switching techniques. Now, what do you mean by switching? Switching means whenever we need to connect something, whenever we need to on or off something, that is with the help of a switch. So whenever we use to connect or disconnect something, whenever during the process of its working, then that is called as a technique named as switching, which is being utilized. So in large networks, there might be multiple paths linking sender and receiver. So information may be switched as it travels through various communication channels. So there are three typical switching techniques available for the डिजिटल ट्रैफिक दैट मीन्स कि लार्ज नेटवर्क्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे पाथ्स होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं जिसके थ्रू हम लोग अपने सेंडर से रिसीवर के पास पहुंच सकते हैं और जो इंफॉर्मेशन है वो भी इन द पाथ वो ट्रैवल करते हुए वो स्विच कर सकती है बिटवीन वेरियस कम्युनिकेशन चैनल्स. सो देयर आर थ्री मेन जो हमारी स्विचिंग टेक्निक्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं जो डिजिटल ट्रैफिक के अंदर, तो वो है सर्किट स्विचिंग, message switching and packet switching. This you must have already read about it, I guess, in the CS2 lecture, in the CS2 your subject, or you may be studying about this in this particular semester only, semester 5th. That is about the circuit switching, message switching and packet switching. So I will give you a brief introduction of circuit switching. It is basically a dedicated communication path. Dedicated means it is a wired communication. Circuit switching means whenever there is a requirement of a dedicated path, a wired communication between the two stations. So in this we are having three phases. First one is establish the connection, then transfer the information and then after disconnect it. Okay. तो सर्किट स्विचिंग के अंदर यहाँ पे हमारे पास स्विचिंग कैपेसिटी एंड चैनल कैपेसिटी दोनों चीजें होनी चाहिए कि आपका जो स्विच है उसके अंदर स्विचिंग कैपेसिटी होनी चाहिए ताकि वो जब भी उसकी रिक्वायरमेंट हो तो वो स्विच कनेक्ट हो सके, जब भी उसकी नहीं रिक्वायरमेंट हो तो वो डिसकनेक्ट हो सके. मतलब वो पोर्टेबल फ्लेक्सिबल चीज होनी चाहिए आपके पास. If you want to connect it, it will connect. If you want to disconnect it, in between, during the running of the program, during the running of the sending of the signal throughout the verification of this system, it should work like that only. Okay, so whenever we need to establish the connection, there should be a switching capacity and the capacity of the channel so that कि हमारा जो signal है वो channel के अंदर से travel कर सके. Must have intelligence to work out routing. तो routing जो है कहाँ से कहाँ signal भेजना है उसकी जो intelligence है वो circuit switching के अंदर होनी चाहिए. Okay, so it is a dominant technology for both voice and data communication. तो चाहे हम इसको वॉइस कम्युनिकेशन के लिए यूज करें, चाहे इसको डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज करें, तो इसके अंदर दोनों चीजों की पॉसिबिलिटी सर्किट स्विचिंग के अंदर है. तो कम्युनिकेशन जो है इसके अंदर वो इलेक्ट्रिकल पाथ से भी हो सकती है, फिजिकल वायर्स यूज कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर, कोएक्सियल केबल्स यूज कर सकते हैं, रेडियो कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली हम सर्किट स्विचिंग के अंदर डेडिकेटेड पाथ को ही प्रेफर करते हैं. तो इसमें हम टेलीफोन नेटवर्क कनेक्शन जो है इसको एक एज एन एग्जांपल हम इसमें देख सकते हैं. तो ये देखो इस डायग्राम में यू विल बी क्लियर अबाउट दिस सर्किट स्विच नेटवर्क के बारे में. See, here are three PCs at the input side and four PCs at the output side, A, B, C and D, E, F, G. तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे. तो यहाँ पे जो black lines हैं, they are all the dedicated paths. तो dedicated paths means कि they are permanent connections, right? So यहाँ पे A, B और C ये इस switch के साथ permanently connected हैं. ये इधर जो
1 नंबर जो स्विच है आपका, इसकी जो आउटपुट है वो 2 नंबर स्विच के इनपुट के साथ परमानेंटली कनेक्टेड है, और जो यहाँ पे ये 2 नंबर की जो दोनों आउटपुट्स हैं वो 3 और 4 नंबर स्विच वाले इनपुट्स के साथ परमानेंटली कनेक्टेड है। और जो इसके सारे आउटपुट्स हैं 4 नंबर और 3 नंबर के जो सारे आउटपुट्स हैं वो ये लास्ट वाले कंप्यूटर्स के साथ परमानेंटली कनेक्टेड है, राइट। लेकिन यहाँ पे इफ यू कैन सी दिस ब्लू connection, this blue, this and this, these blue connections, they are all temporary connections. सर्किट स्विच नेटवर्क है, डेडिकेटेड पाथ है, परमानेंट लिंक्स कनेक्टेड है इसके अंदर, लेकिन वो परमानेंट लिंक्स के अंदर भी हमने एक ऑप्शन छोड़ी है टेम्पररी कनेक्शंस की। क्यों छोड़ी है? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को एक बेनिफिट मिल रहा है। क्या बेनिफिट मिल रहा है कि अगर हम ए से या बी से या सी से किसी भी पीसी से इंफॉर्मेशन को इन चारों में से किसी भी पीसी को कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर, वी कैन यूज दिस ए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ए की जो इंफॉर्मेशन है वो डी को और एफ को भेजना चाहता है। ए जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को डी और एफ दोनों को भेजना चाहता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जो ए वाला कनेक्शन था, उस जो डेडिकेटेड पाथ था उसको वन स्विच के अंदर एक टेम्पररी कनेक्शन से उसकी आउटपुट के साथ जोड़ दिया ए वाले साइड को। यहाँ पे अब ये ऑब्वियसली ये परमानेंट कनेक्शन है। जब ये परमानेंट कनेक्शन है तो इस स्विच के साथ उसे पता है कि वो किसको सिग्नल भेजना चाहता है। ठीक है, तो वो सिग्नल भेजना चाहता है डी को। ए वांट्स टू ट्रांससेंड इंफॉर्मेशन, डी को भेजना चाहता है। वो एफ को भी भेजना चाहता है, लेकिन वो पहले डी को भेजना चाहता है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एक टाइम पे सिर्फ एक पीसी को इन्फॉर्मेशन वो ट्रांसमिट कर सकता है, राइट। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से इसको 2 नंबर को 3 नंबर वाले स्विच के साथ टेम्पररी कनेक्शन के साथ जोड़ दिया। अब अगर इसने इसको यहाँ पर जोड़ दिया तो क्या होगा कि यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो इस पाथ के थ्रू यहाँ पे जुड़ गई और ये इसके थ्रू यहाँ डी के पास पहुंच गई। अब अगर वो चाहता है इसको एफ को भेजना तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इस कनेक्शन को जो यहाँ पे टेम्पररी कनेक्शन हमने 3 वाली स्विच को लगाया है उसको यहाँ से हटा के हम 4 वाले स्विच पे लगा देंगे। अगर 4 वाले स्विच पे लगा देंगे तो ये एफ के साथ चला जाएगा। अगर हमने इसको यहाँ से हटा के इसको जी के साथ कनेक्ट कर दिया, इधर से 4 के साथ इधर से जी के साथ, तो जो एक ही इंफॉर्मेशन है वो कहाँ चली जाएगी, जी के पास चली जाएगी। तो दिस इज अ सर्किट स्विच्ड नेटवर्क, अ बेसिक एग्जांपल ऑफ अ सर्किट स्विच्ड नेटवर्क, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी इंफॉर्मेशन कहीं से भी, अब जरूरी नहीं है कि यहाँ से हमने ए से ही भेजनी है, बी से, सी से, जहां से भी भेजना चाहते हो ये टेम्पररी कनेक्शन उसके साथ कनेक्ट कर दो और उसके बाद हम जिस भी पीसी को इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो इस डेडिकेटेड पाथ के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें इस डेडिकेटेड पाथ में क्या बेनिफिट है हमारे पास, वी आर हैविंग 2 ऑप्शंस विद अस, कि हमारे पास परमानेंट लिंक्स भी हैं और टेम्पररी लिंक्स भी हैं। परमानेंट लिंक्स वो हैं जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, उन्हें हम नहीं छेड़ सकते, उनको हम नहीं चेंज कर सकते हैं। बट जो हमारे पास टेम्पररी लिंक्स हैं उनको हम डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट वी कैन चेंज देम, और हमें जरूरत नहीं है चेंज करने की, डिपेंडिंग अपॉन जो भी उसके अंदर सिस्टम बनाया हुआ है उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली जहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन जा रही है उसके अकॉर्डिंगली वो स्विच ऑन ऑफ कर देगा उस डिवाइस को। और इसकी लेकिन एक डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर कंजेशन प्रॉब्लम उस टाइम पे हो सकती है जब ये क्या कर रहा है, जब किसी 2 पीसीज ने इकट्ठा डाटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दिया तो उस टाइम पे देयर कुड बी अ प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक, कंजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अदर देन दैट द सर्किट स्विच नेटवर्क इज कंप्लीटली फाइन, और इसके अंदर और कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी जो है वो हमें नहीं आती है। तो दिस इज कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर हम लोग इसको यूज करते हैं फॉर द डेडिकेटेड ट्रांसमिशन ऑफ द थिंग्स। ठीक है, तो इसकी मेजर एडवांटेज है डेडिकेटेड ट्रांसमिशन एंड अलोंग विद दैट डेडिकेटेड पाथ, और देयर इज नो डिले नहीं है इसके अंदर, जैसे जब भी डाटा आएगा वैसे वैसे वो ट्रांसमिट हो जाएगा। और इसको लेकिन डेडिकेटेड पाथ है तो इसके लिए इसकी डिसएडवांटेज बन जाती है कि इसको बैंडविड्थ भी ज्यादा चाहिए और इसको कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और समटाइम्स अगर चैनल फ्री नहीं है तो इट शोज अ बिजी साइन इन बिटवीन, राइट।
तो नेक्स्ट स्विचिंग जो है, नेक्स्ट स्विचिंग पे मूव करते हैं हम, दैट इज योर मैसेज स्विचिंग। ये मैसेज स्विचिंग जो है उसमें क्या हो रहा है, हमारे पास एक मैसेज है जिसको हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं विदाउट एनी ब्रेक फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, हम उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं। जो नोड प्रोसेसर है वो सारा मैसेज को रिसीव करता है, सारे मैसेजेस को रिसीव करता है और उसके बाद उसको स्टोर कर लेता है। फिर उसको डाटा ट्रांसमिशन के लिए, एरर्स के लिए चेक करता है, अगर कोई एरर रिकवरी चाहिए तो वो उसको उसमें परफॉर्म करता है, ठीक है। डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करता है, रूटिंग एल्गोरिदम को चेक करता है। तो ये मैसेज स्विचिंग के अंदर ये सारे काम जो हैं परफॉर्म होते हैं। उसके बाद जब सब कुछ क्लियर है, डेस्टिनेशन एड्रेस चेक हो गया कि अप्रोप्रिएट एड्रेस है, रूटिंग एल्गोरिदम चेक हो गया कि हाँ हमने रूट फाइंड आउट कर लिया है कि इस रूट से डेटा भेजा जाएगा, देन एरर्स चेक कर लिए, एरर की रिकवरी कर ली अगर कोई है तो, फिर उसके बाद उस मैसेज को फॉरवर्ड किया जाता है टू द नेक्स्ट चोजन लिंक। ठीक है, तो यहाँ से इस डायग्राम से आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ पाओगे दैट हियर इज द मैसेज सोर्स, जो सोर्स है आपका। अब ये सारे स्विचेस लगे हुए हैं बीच में, तो बहुत सारे पाथ हैं इसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, बिकॉज इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि देयर विल बी ओनली वन डेस्टिनेशन, देयर कैन बी टू और मोर देन टू इन डेस्टिनेशंस आल्सो, राइट। तो मैसेज जो है स्विचिंग, इट वाज इन्वेंटेड बेसिकली फॉर द टेलीग्राफी, जो इनिशियल टाइम के ऊपर होती थी। पर आजकल मैसेज आप देखो, आप नॉर्मल सिंपल आप फोन की भी बात करो तो उसमें भी हम यही स्विचिंग टेक्निक्स जो है वो यूज करते हैं। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो आप अगर किसी को कोई मैसेज सेंड करते हो, या पुराने टाइम पे जब अभी भी अगर आप व्हाट्सएप पे देख लो, व्हाट्सएप पे अगर आप कोई मैसेज सेंड करते हो, ट्रांसमिट करते हो, तो क्या होता है उस चीज के अंदर व्हाट्सएप, तो उसमें व्हाट हैपेंस इज कि आप जब का आपका नेटवर्क ऑन है, जो नेक्स्ट पर्सन को आप मैसेज ट्रांसमिट करना चाहते हो उसका नेट बंद है, तो क्या होता है, यू गेट अ सिंगल टिक। सिंगल टिक मीन्स दैट फ्रॉम योर साइड द मैसेज हैज बीन ट्रांसमिटेड, बट उसके पास अभी नहीं पहुंचा है, मे बी उसका डेटा ऑफ है या उसका इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है अभी, तो उसके पास नहीं पहुंचा। देन आफ्टर वो क्या हो रहा है, अब आपकी तरफ से चला गया, उसके पास पहुंचा नहीं, तो गया कहाँ मैसेज। दिस इज द स्विचिंग टेक्निक, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम, कि वो उस मैसेज को इन बिटवीन क्लाउड के अंदर अपना होल्ड एंड स्टोर करके रखता है तब तक जब तक आपका जो डेस्टिनेशन है इट इज नॉट ओपन टू रिसीव दैट मैसेज। तो सारा मैसेज जो है, वो सारे मैसेजेस जो हैं, आप चाहे बहुत सारे सोर्सेज से मैसेजेस आ रहे हैं तो वो सारे मैसेजेस क्या होते हैं, मल्टीप्लेक्स होते हैं ऑन टू शेयर्ड लाइन्स, स्टोर होते हैं, फिर फॉरवर्ड होते हैं। सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस उनके अंदर होता है, रूटिंग इन्फॉर्मेशन होती है सारी, और समटाइम्स इट इज कनेक्शन बेस्ड और मोस्टली इट इज कनेक्शन लेस सर्विसेज जो यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो यू कैन सी हेयर कि यहाँ से मैसेज किया और उसने देखा कि सारा रूट खाली है, तो वो डायरेक्टली सीधा सीधा यहाँ से पहुंच गया डेस्टिनेशन पे। अदरवाइज अगर यहाँ से कोई और मैसेज, कोई और सोर्स यहाँ से इनपुट भेज रहा होता, तो हो सकता है वो ये वाला पाथ फॉलो कर लेता, या ये वाला पाथ फॉलो कर लेता, या कोई और पाथ फॉलो कर लेता। तो इस तरह से आपकी, ये देखो इसके अंदर यू कैन सी इन मच क्लियरर वे दैट इज हेयर आर टू PCs in the input side, and two are at the output side, or we can say this is the input PC and this one is the input, and this is the destination one and this is the destination one. So two PCs are sending and these two are receiving the signals, right? So look at this, here is the store and forward network at this place. Store and forward, first store the information, and then after checking everything, then pass on the information to the destination side. So here it has this computer is PC1 has sent the information M1 and it has seen that ये वाला line जो है वो busy है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने ये पाथ को फॉलो नहीं किया, उसने ये वाला पाथ फॉलो किया फ्रॉम दिस फर्स्ट स्टोर एंड फॉरवर्ड टू सेकंड एंड देन टू द M1 जहाँ पे उसने अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना था। तो वो कोई भी पाथ फॉलो करके जा सकता है, जो भी लाइन उसको फ्री मिल रही है। देन आफ्टर इफ वी विल टॉक अबाउट M2, तो इसने क्या किया, उसने ये वाला पाथ नहीं फॉलो किया, क्यों, क्योंकि इस पाथ के अंदर M1 जा रहा था, ये पाथ के अंदर भी M1 जा रहा था, तो दैट इज व्हाई इट हैज चोजन दिस पाथ टू
to reach its destination. तो इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, कोई भी इसमें डेडिकेटेड पाथ नहीं है, अपने अकॉर्डिंगली जो भी चैनल फ्री है आप उसके अकॉर्डिंगली मैसेज स्विचिंग में आपका मैसेज जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसमें एफिशिएंट जिसकी एडवांटेज है मेन, दैट इज इट्स हैविंग efficient traffic management techniques के by assigning the priorities to the messages, जिसको आप priorities सेंड असाइन करना चाहते हो तो आप उसको प्रायोरिटी असाइन करके आपका मैसेज जो है उसको ट्रांसमिट कर सकते हो। देन इन मैसेज स्विचिंग द नेटवर्क डिवाइसेस दे शेयर द डेटा चैनल, जो भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं ये सारे आपके जो चैनल को शेयर कर रहे हैं, तो जैसे ही ये यहाँ पे डाटा पहुंच जाएगा उस टाइम पे ये सारा चैनल फ्री हो जाएगा, तो कोई भी उसको दोबारा से भी यूज कर सकता है। तो इसमें लेकिन इसमें हम लोग उसकी एक और एडवांटेज है कि इसमें हम एसिंक्रोनस टाइम जोन, जो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है वो प्रोवाइड करते हैं। कोई भी पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं है कि इसमें लगातार इसमें से डेटा सेंड होगा ही होगा। इट इज एसिंक्रोनस मींस कि किसी भी टाइम पे डेटा आ भी सकता है, किसी टाइम पे डेटा नहीं भी आ सकता है। बट इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि क्योंकि हर बार ये इंफॉर्मेशन को पहले स्टोर करता है एंड देन आफ्टर इट फॉरवर्ड्स द इंफॉर्मेशन, तो समटाइम्स इट enhances some kind of a delay or it introduces some kind of delay जो कि रियल टाइम एप्लीकेशंस के अंदर हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो दैट इज वाई जो ये मैसेज स्विचिंग है ये सिर्फ डेटा ट्रांसमिशन के लिए ही हम लोग यूज करते हैं। वॉइस और वीडियो में वी कैन नॉट अफोर्ड एनी काइंड ऑफ अ डिले, राइट। तो दैट इज वाई इस मैसेज स्विचिंग को हम मैसेजेस के लिए ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अगर थोड़ा बहुत डिले हो भी जाए तो इसका इतना प्रॉब्लम जो है वो हमें नहीं आता है। देन आफ्टर जो ये इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं, इसकी एक और डिसएडवांटेज है, सेकंड डिसएडवांटेज कि जो ये इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं दे रिक्वायर अ लार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी, इनको चाहिए होती है सिंस इट हैज टू स्टोर द मैसेजेस। तो इसको मैसेजेस स्टोर करने होते हैं, तो दैट इज वाई इसको लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए होती है टू स्टोर द मैसेज अनलेस द फ्री पाथ इज अवेलेबल। अगर कोई फ्री पाथ अवेलेबल नहीं है तो ये डेटा को स्टोर करके रखेगा, तो इस वजह से इसको ज्यादा कैपेसिटी चाहिए स्टोरिंग के लिए, राइट। So this was about the message switching. It was some advantages. I have already discussed the advantages. So next are the packet switching. Next is the packet switching. Packet switching is we can say the solution that tries to combine the advantages of message and circuit switching. So packet switching जो हमने ये बनाई है तो इसमें वो क्या कर रहा है, it is providing you the advantages। दोनों स्विचिंग टेक्निक्स के एडवांटेजेस जो है वो मैसेज पैकेट स्विचिंग जो है वो प्रोवाइड कर रही है, मैसेज स्विचिंग के भी और सर्किट स्विचिंग के भी, और इनके डिसएडवांटेजेस जो हैं उसको थोड़ा बहुत रिड्यूस जो है पैकेट स्विचिंग के अंदर किया जा रहा है। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है, पैकेट स्विचिंग कनेक्शन लेस सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इसमें आपका सारा का सारा डेटा इकट्ठा ट्रांसमिट नहीं होता। यू कैन सी हियर many paths may be used for the data to travel। इसमें जो भी पैकेट्स हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं उसमें सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस और एक सीक्वेंस नंबर एक्स्ट्रा जो हम लोग इसमें डाल रहे हैं हर एक पैकेट के अंदर। और अगर कोई हमारा डेटा जो है वो बड़ा है, डेटा लार्ज डेटा है, लार्ज स्पेस ले रहा है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे पैकेट्स में, इंडिविजुअल पैकेट्स में उसको डिवाइड कर रहे हैं। और डिवीजन के बाद भी, उस पैकेट्स की डिवीजन के बाद भी क्या हो रहा है हमारे पास, उसमें हम एक रूट नंबर डाल रहे हैं जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंस नंबर। दैट इज अगर एक पैकेट, एक हमने मैसेज ट्रांसमिट करना है, उस मैसेज के हमने 4 पार्ट्स बनाए, तो वो 4 पार्ट्स का A B C D या 1 2 3 4 ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, उसके पैकेट्स के नंबर उनमें सीक्वेंस नंबर डाल देंगे। सो दैट मतलब फॉर एग्जांपल एक पैकेट का नाम है A, तो उसके साथ हमने सीक्वेंस नंबर डाल दिया A1 A2 A3 A4, सो दैट कि जब भी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचे तो हम वो सारे पैकेट्स को सीक्वेंस वाइज उनको कंबाइन कर लें। अगर मान लो सेम टाइम के ऊपर एक ही डेस्टिनेशन पे A पैकेट और B पैकेट्स पहुंच रहे हैं, तो हमारे पास क्या आया, A1 B3 A4 B5 A2, इस तरह से कुछ पैकेज जो है वो हमें रिसीव हुए। तो वो क्या करेगा, A वाले पैकेट्स को अलग से रखेगा, B वाले पैकेट्स को अलग से रखेगा, उनको सीक्वेंस वाइज कंबाइन करेगा एंड देन आफ्टर इट विल रिसीव दोस पैकेट्स, उनको रीअसेंबल करके डिपेंडिंग अपॉन द अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस नंबर it will collect the data, it will reassemble them, okay। and along with that इसमें एक और एडवांटेज है कि इसका कोई भी फिक्स्ड पाथ नहीं है। कोई भी मैसेज किसी भी जगह से आया है,
कौन सा भी वो पाथ जो है वो उसको फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई डिले का ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, कोई भी इसमें डेडिकेटेड चैनल की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो कोई भी डेटा कभी भी किसी भी टाइम पे कहीं से भी वो पहुंच सकता है और इट विल गेट द रूट फ्रॉम इटसेल्फ, राइट। बट द बेसिक थिंग इज कि जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जो हमने इसमें सेंड करनी है उसमें डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस और सीक्वेंस नंबर, सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, वहां पे सीक्वेंस नंबर जो है, ये 3 चीजें जो है वो मस्ट है, क्योंकि ये कनेक्शन लेस सर्विस है। ठीक है, और ब्रेकिंग कम्युनिकेशन इनटू पैकेट्स, तो उससे क्या होता है, इट अलाउज द सेम डेटा पाथ टू बी शेयर्ड अमंग मेनी यूजर्स इन द नेटवर्क। तो सेम डेटा पाथ जो है वो बहुत सारे यूजर्स जो है वो शेयर कर सकते हैं आपस के अंदर। ठीक है, तो इसमें इसलिए स्मॉल यूनिट्स ऑफ पैकेट्स जो हैं वो हम लोग यूज करते हैं, दे आर रूटेड थ्रू अ नेटवर्क बेस्ड ऑन द destination address. So this is the comparison of circuit message and packet switching. I hope it is all clear to you. Okay, so let's give a quick review to all the 3 switching techniques that we have studied in this lecture. The message switching, the telegraph network के लिए हम लोग यूज करते हैं, टेलीग्राम्स के लिए यूज करते हैं। जो सर्किट स्विचिंग है, टेलीफोन नेटवर्क, बाय डायरेक्शनल रियल टाइम ट्रांसफर ऑफ वॉइस सिग्नल्स के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, में डिले की प्रॉब्लम कम है। जो पैकेट स्विचिंग है वो मोस्टली इंटरनेट और रिलायबल स्ट्रीम्स के बीच में या कंप्यूटर्स के बीच में हमने डेटा जो है वो ट्रांसमिट करना है, तो उसके लिए यूज करते हैं। तो जिसका एंड टर्मिनल है वो टेलीग्राफ टेलीटाइप हो सकता है, सर्किट स्विचिंग का टेलीफोन मॉडेम हो सकता है, पैकेट स्विचिंग का इट कुड बी कंप्यूटर। जो इन्फॉर्मेशन हम इसमें सेंड करते हैं, मॉर्स कोड्स जो डॉट्स एंड डैशेस की फॉर्म में होते हैं, मॉर्स कोड्स, बॉर्डर कोड्स और स्काई कोड्स, ये हम लोग सारे यूज कर सकते हैं इसके अंदर। सर्किट स्विचिंग में वॉइस, पीसीएम, डिजिटल वॉइस, ये सारी टाइप्स जो हैं उनको हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं। बट पैकेट स्विचिंग में मोस्टली हम बाइनरी इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं। तो ट्रांसमिशन टाइप्स कौन सी हो सकती हैं इसके अंदर, मैसेज स्विचिंग में डिजिटल डेटा ओवर डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया, क्योंकि मैसेज स्विचिंग में हम लोग वॉइस वीडियो के लिए इसको नहीं यूज कर सकते बिकॉज ऑफ इट्स डिले प्रॉब्लम, तो हम लोग इसमें डिजिटल डेटा को हम लोग इसमें ट्रांसमिट करते हैं फॉर ओवर डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। सर्किट स्विचिंग के अंदर एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नल्स ट्रांसमिट हो सकते हैं ओवर द ट्रांसमिशन मीडियाज, और पैकेट स्विचिंग के अंदर कोई भी डेटा किसी भी तरह का ट्रांसमिट हो सकता है ओवर द ट्रांसमिशन मीडिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्विचिंग टेक्निक्स, राइट। I hope it is all clear to you all. If there will be any doubts, then we will be discussing them in the live session. Thank you so much.